हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? 11th क्लास इंग्लिश मीडियम मैथमेटिकल टूल्स, इसका लास्ट वीडियो हमने आपके लिए बनाया था, जिस वीडियो के अंदर अलजेब्रा से रिलेटेड फिजिक्स के अंदर हमें किन किन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वो सारे हमने कर लिए थे। आज हम इस पार्ट्स नंबर 2 में we discuss about the trigonometry, then differentiation, then integration, then graph। तो जैसे जैसे पार्ट्स होते जाएंगे उस हिसाब से हम सारे करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, प्योर इंग्लिश मीडियम 11th क्लास के लिए हेडिंग लगाइए ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। First we start a right angle triangle. In a right angle triangle, let ABC is a right angle triangle. This angle is theta. Then opposite sides of theta is called perpendicular, and this is your base. This one is your hypotenuse. Then by the Pythagoras theorem, you can write h square equal to p square plus b square, or h is equal to under root of p square plus v square. This is our first formula. H square is equal to under root of p square plus v square. Now second is, what is the angle theta? Angle theta is equal to arc upon radius. It is measured in degree, radian you can write RAD, and 360 degree is equal to 2 pi radian. Then 1 degree is equal to 2 pi upon 360, or you can write pi upon 180 radian. So we can change easily, like this. We have an angle theta, this is the arc AB or radius R, then theta arc equal to AB upon OA, or you can write x upon R. Now let we have the angle 1 degree is equal to pi upon 180 radian. So what is the value of 30 degree? 30 degree you can place pi upon 180 into 30, that will be pi by 6 radian. You can change it, pi by 6 radian. Similarly 45 degree, pi upon 180 into 45, this you can write pi upon 4 radian. 60 degree, pi upon 180 into 60 degree, you can write pi upon 3 radian. Or 90 degree, pi upon 180 into 90 degree, we can write pi upon 2 radian. So these are the conversion of the degree to radian. डिग्री से रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो आपके सामने। सिमिलरली 120 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 120, दैट इज 0 to 0, इट मीन्स 2 पाई बाई 3 रेडियन। और यू कैन राइट 150 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 150, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 0 to 0 कैंसिल, 3 5 जा 3 6 जा, तो 5 पाई बाई 6 रेडियन, 5 पाई बाई 6 रेडियन। और 180 डिग्री यू कैन राइट पाई अपॉन 180 इंटू 180, दैट इज पाई रेडियन। तो सिमिलरली इसी फॉर्मूले से आप लगातार इनको चेंज करते चले जाएंगे। नाउ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये नोट कर लीजिए सभी।
हो गया नोट, इरेज कर दें, ओके इरेज करते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं सारे, आप पॉज करके नोट करते रहना, और नोट करना जरूरी है क्योंकि नोट नहीं करोगे तो कोई सेंस नहीं है पढ़ने का। चलिए नेक्स्ट वी कैन राइट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। दिस इज द साइन ऑफ मिनट, so we can write 1 minute is equal to 1 degree upon 60 और 1 degree is equal to pi upon 180 रेडियन। तो pi upon 180 into 60 रेडियन। यू कैन कैलकुलेट, इसको आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, मोबाइल से कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से। सिमिलरली ये तो आ गया आपका 1 मिनट, and 1 second is equal to, 1 second is equal to, you can write pi upon 180 into 60 into 60 radian. So these are the values of 1 degree, 1 minute and 1 second. We have to learn these. आपको ये लर्न करके तैयार रखने। Now what are the trigonometrical ratios? अब trigonometrical ratios क्या होते हैं वो बात करते हैं। तो there are the 6 types of the ratios like sin theta, cos theta, tan theta, and next cosec theta, sec theta and cot theta. You can find these values by this formula PBP upon HHB. You can learn this short trick. Pandit Badri Prasad Har Har Bole. It means P upon H. You can write sin theta. This is P upon H is sin theta and H upon P is cosec theta. H upon P is cosec theta. Similarly, B upon H cos theta base upon hypotenuse and H upon B sec theta. एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, इनवर्स आ रहे हैं। cot थीटा और tan थीटा में क्या रिलेशन होगा, P अपॉन B इज tan थीटा एंड नोट इट डाउन। ये सभी को लर्न होगा, वैसे 9th क्लास में आपको लर्न करा दिया जाता है। नाउ द टेबल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री 0 डिग्री टू 90 डिग्री, the values of the sin, cos, tan and cosec, sec, cot. What are the values of these? तो यहाँ वैल्यूज निकालने से पहले हम इनको देख सकते हैं कि दीज आर इनवर्सली sin थीटा यू कैन राइट 1 अपॉन cosec थीटा। सिमिलरली sin इंटू cosec इज इक्वल टू 1, सो sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 एंड हेयर इज cos थीटा is equal to 1 upon sec theta, or we can write cos theta into sec theta is equal to 1, and here is tan theta is equal to 1 upon cot theta, or we can write tan into cot is equal to 1, tan into cot is equal to 1. So these are the values you can easily find out. Now how can we find out the values of sin, cos, tan and cosec, sec, cot from 0 to 90 degree? These values are given in the 9th class trigonometry, and from where we can easily find out these values, and now we have to learn these values. 11th 12th IIT JEE के लिए या नीट कंपटीशन, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम्स हो या कोई सी भी क्लास हो, हमें ये वैल्यूज लर्न होना मस्ट है। यदि ये वैल्यूज लर्न नहीं है तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो टेबल बनाना आए या ना आए, वी हैव टू लर्न दीज वैल्यूज, हमको लर्न करनी पड़ेंगी। तो मैं टेबल बना के आपको बता रहा हूँ, एक बार आप इनको लर्न कर लीजिए। सभी को, जो बच्चे भूल गए
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, and then cot theta. Zero degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and then 90 degree. Your table is ready. Now what are the values of sin 0? सबसे पहले sin 0 0, sin 30 1/2, 45 1/√2, 60 degree √3/2 and 90 degree 1. cos just अपोजिट, cos की वैल्यूज कैसी आएंगी, ये देखिए अपोजिट टू साइन थीटा यानी 90 से उल्टा, तो 1 √3/2 और दिस इज 1/√2, उल्टे चले आइए आप 1/2 0, 10 मीन्स साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 0/1 मीन 0, अगेन 0 दिस 1/√3, ये 1/1 कितना आएगा 1, 60 डिग्री √3 और 90 डिग्री 1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी, दैट यू कैन राइट इन्फिनिटी, वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा? कोसेक थीटा इनवर्स ऑफ साइन, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज 2, दिस इज √2 and this will be 2/√3, this is your 1. sec theta inverse of cos theta, 1 2/√3, 2/√3, this value is √2 and this is 2 and this is infinity. cot inverse of tan, infinity √3, 1 1/√3 and this is 0. So this is the table of 0 to 90 degree. You can find out easily the value of 0 to 90 degree. How can we find out? So note it down, पूरा नोट कर लीजिए अच्छी तरह से आप लोग, फिर नेक्स्ट फॉर्मूलेज पढ़ेंगे टेक्नोमेट्री के. स्क्वायर फॉर्मूलाज इरेज कर दें. ओके, स्क्वायर फॉर्मूलाज, स्क्वायर फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा and cos theta upon sin theta is equal to cot theta. So we have to learn this formula, very very important to us. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Sin theta upon cos theta is equal to tan theta and sin theta upon cos theta upon sin theta equal to cot theta. Now we start कि what are the values of the sin, cos, tan, cosec, sec, cot greater than to 90 degree. यदि एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है then how can we find out the values of sin, cos, tan, cosec, sec, cot. So just we start
ASTC rule. We start a rule, हेडिंग लगाइए वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जब एंगल ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में आप वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर अप्लाइड करना है। हाउ कैन बी अप्लाइड? फर्स्ट वी टेक ए क्वाड्रेंट, लाइक वी हैव द 4 क्वाड्रेंट, let this is the first quadrant from 0 to 90 degree. This value is 0 to 90 degree. Let this is the second quad 90 degree to 180 degree. 90 degree to 180 degree. And this one is 180 to 270 degree. Let it is third quadrant. 180 degree to 270 degree, and last is 270 degree to 360 degree or fourth quadrant. So these are the our first, second, third and fourth quadrant. Now if the angle is 0 to 90 degree, then you can write plus plus plus. Plus plus means all the trigonometric ratios are positive in this quadrant. So we have the rule number 1, ASTC. ASTC. In second quadrant plus minus minus, in third quadrant minus minus plus, and in fourth quadrant minus plus minus. Minus plus minus. ASTC, A means all, S means sine, T means tan, and C means cos. Sin theta is changed with cosec theta. जैसा sin थीटा का होगा उसी का साइन cosec थीटा के इक्वल होगा। तो sin थीटा इज इंटरचेंज विद साइन, या ऐसा करिए कि यहीं लिख देते हैं साइन चेंज बाई cosec थीटा, tan cot थीटा एंड cosec थीटा। तो ASTC रूल, what is the ASTC rule? First quadrant, this is the quadrant number 1, 2, 3 and quadrant number 4. In first quadrant, all trigonometrical ratios are positive. All are positive. All trigonometric ratios are positive. In first quadrant, all are the positive. Note it down. ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। कैसे आएंगे? सारे के सारे पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट यू कैन राइट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। साइन एंड कोसेक, प्लस माइनस माइनस लिखा हुआ है ना, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot, tan theta and cot theta are positive. In fourth quadrant, you can write cos theta and sec theta will be positive. So this is our first rule, ASTC rule. मैं जरा चेक कर लूँ पूरा आ रहा है क्या बोर्ड पर? यस, करेक्ट, पूरा नीचे से आ रहा है। देख रहा था कैमरे में पूरा आ भी रहा है या नहीं आ रहा, आ गया। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या देखा
that if trigonometric ratio in first quadrant, then all are positive. In second quadrant means 90 to 180 degree, and in third quadrant tan theta and cot theta positive, and in fourth quadrant cos theta and sec theta is positive. ASTC you can learn it after school to college. After school to college, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, एज यू विश, जैसे भी आप लर्न करना चाहो इसको लर्न कर सकते हैं. एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी. सो दिस इज द मेथड ऑफ लर्निंग of this short form ASTC. Now second rule number second, if 90 plus minus theta or 270 plus minus theta, यदि ये एंगल गिवन हो आपको 90 plus minus theta और 270 plus minus theta, then sin theta change into cos theta and cos theta change in sin theta. Similarly, cosec theta will become sec theta and cell will become cosec theta, and tan theta convert in cot theta and cot theta convert in tan theta. तो ये देखिए कि if यदि एंगल हमारे पास में 90 प्लस थीटा हो, यानी कि 90 से हमने ऐड किया है या 90 से हम सब्ट्रैक्ट करें, और इसी तरह से 270 से ऐड और 270 से सब्ट्रैक्ट, तो उस कंडीशन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा. साइन है तो वो कॉस बन जाएगा, और यदि कॉस है तो वो साइन बन जाएगा. कोसेक है तो सेक बनेगा, सेक है तो कोसेक बनेगा. टेन है तो कॉट बन जाएगा, कॉट है तो टेन बन जाएगा. एंड साइन आर चेंज एज क्वाड्रेंट, एंड द साइन आर चेंज एज क्वाड्रेंट. जैसा क्वाड्रेंट होगा उसी तरह से साइन चेंज हो जाएंगे इनके. फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाएंगे, सेकंड है तो सेकंड के हिसाब से साइन लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू नो साइन 120 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 120 डिग्री साइन में. साइन की 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हम बना सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री. क्या बना सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री. अब साइन 90 प्लस 30 है तो 90 प्लस का रूल क्या बताया आपको, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में. तो इसको क्या लिख देंगे हम, कॉस 30 डिग्री. अब हम इसका साइन देखेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड में साइन थीटा कैसा होता है, प्लस का, तो यहां लिखेंगे प्लस का. साइन थीटा का साइन देखना है, ये ध्यान रखना आप लोग, कॉस का मत देख लेना. जो क्वेश्चन है उसी का हमें साइन देखना है, यानी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आंसर का मत देख जाना, कई बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पर. तो cos 30 की वैल्यू आप जानते हो पहले से, दैट इज √3/2. तो ये आ गया हमारा साइन 120 इज इक्वल टू √3/2. सिमिलरली वी वांट टू नो, ये रेज कर दें. रूल नंबर 1, 2 आपका हो गया. सिमिलरली हटा दिया जाए. ओके, मान लीजिए कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 120 डिग्री. सो फर्स्ट वी कैन राइट cos 90 प्लस 30 डिग्री. cos 90 प्लस 30 डिग्री. cos विल चेंज इन साइन, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में. तो यू कैन राइट साइन 30 डिग्री. नाउ यू कैन चेक
दिस क्वाड्रेंट इज सेकंड क्वाड। सेकंड क्वाड में कॉस कैसा होता है वो आपको चेक करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1/2। चलिए रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड रूल देखिए, इफ 180 ± थीटा और 360 ± थीटा, यदि ये गिवन है 180 ± थीटा और 360 ± थीटा, देन नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि साइन थीटा का साइन थीटा ही बना रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, कॉट का कॉट, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यही हो जाता है, साइन का बनेगा साइन, कॉस का बनेगा कॉस, टेन का बनेगा टेन। ओनली द साइंस आर चेंज, केवल साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो उनके चिन्ह है केवल वही बदलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल उसी को ले लेते हैं हम, साइन 120 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वी राइट साइन 180 - 60 डिग्री। वी हैव टू राइट साइन 180 - 60 डिग्री। ओके, साइन 180 लिखा हुआ है, 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, तो उस कंडीशन में साइन का साइन ही रहेगा। यानी कि हम इसको क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री। अब ये देखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस का साइन। अब साइन 60 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये आंसर आ गया हमारा √3/2। तो 180 बना करके इजी होता है क्वेश्चन को करना, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम का सेम बना रहता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करिए कि cos 120 गिवन हो। cos 120 यू कैन राइट cos 180 - 60 डिग्री। वी कैन राइट cos 180 - 60 डिग्री। सो cos का cos ही रहेगा, cos 60 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस साइन यहाँ यूज करेंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देन वी कैन राइट -1/2। तो इस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, cos 180 डिग्री। यदि हमें cos 180 डिग्री का पता करना, तो यू कैन राइट cos 180 - 0, और आप लिख सकते हैं 180 + 0, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आएगी, cos 0। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड में भी नेगेटिव होता है cos, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस, cos 0 की वैल्यू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, cos 180 = -1। तो है जी, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में रूल नंबर 4, ये हटा दें सारा, ये 18 में इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। Now rule number 4. If n into 360 ± theta, then again no change, कोई भी चेंज फिर नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन पूरा हो जाएगा ना। यदि मान लीजिए कि एंगल बहुत बड़ा है,
फॉर एग्जाम्पल 360 से अबव का एंगल है तो उस कंडीशन में 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यदि रोटेशन 2 कंप्लीट कर गया, उससे बड़ा एंगल है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 720 डिग्री, 750 ले लीजिए, 750 डिग्री, we have to find out this value 750 degree. Now you can write this sin 2 into 360 plus 30 degree. इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 into 360 plus 30 degree. Then simply we can write, इसमें क्या हुआ, 2 साइकिल पूरा हो गया उसका पूरा, एक साइकिल में 360 डिग्री, फिर दोबारा से लौट के आया 360 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया पूरा कंप्लीट। तो यहाँ क्या वैल्यू बची, साइन 30 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट इजीली। नाउ फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट, अब मान लीजिए कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और उनको ASTC रूल नहीं आ रहा है या उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो फिजिक्स में कम से कम साइन थीटा और कॉस थीटा की कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि बार बार हमें ज़रूरत पड़ेंगी, तो उन वैल्यूज को आप लिख लीजिए, उनको आपको लर्न करके रखना हमेशा। ये मैंने रूल बता दिया निकालने के लिए। अब कुछ वैल्यूज आपको लर्न करके तैयार रखिए, जो रिजल्ट्स है वो हमेशा आपको लर्न रहना ही चाहिए। इसमें मैं साइन की लिखा रहा हूँ, आफ्टर दैट कॉस की लिखाएंगे। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन π/6। साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए हमें, और साइन π/4। साइन 60 डिग्री, इट मीन्स साइन π/3। साइन 90 डिग्री मीन्स साइन π/2। साइन 120 डिग्री मीन्स साइन 2π/3। साइन 180 डिग्री मीन्स साइन पाई। साइन 270 डिग्री मीन्स साइन 3π/2 and sin 360 degree means sin 2π. You have to find these values. You have to learn these. आपको लर्न करनी। sin 0 is equal to 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, sin 120. What is the value of 120? Again √3/2 प्लस में, एंड साइन 180 डिग्री 0 -1, साइन 2π 0। नाउ कॉस की वैल्यूज, कॉस की याद होनी चाहिए। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 30 60 तो आती है आपको, कॉस 90 डिग्री और कॉस π/2 इज इक्वल टू 0, कॉस 120 डिग्री और कॉस 2π/3 इज इक्वल टू -1/2, कॉस 180 डिग्री और कॉस पाई दैट इज -1, कॉस 270 डिग्री और कॉस 3π/2 दैट इज इक्वल टू 0, कॉस 360 डिग्री और you can write cos 2π that is value is 1. You have to learn these values. आपको क्या करनी है, ये वैल्यूज लर्न करनी है। फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मूले आगे के सीखते हैं। हो गया, नोट हो गया, हटा दें बच्चों, हटा दिया जाए। वायर हिल गया माइक का। चल हटा रहे हैं।
अब कुछ फॉर्मूले सीखेंगे हम दोबारा से। सबसे पहले हाफ एंगल फॉर्मूला, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिमिलरली कॉस टू थीटा विल बी चेंज इन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को ही हम साइन ही साइन में या कॉस ही कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वी कैन राइट कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दीज आर आवर फॉर्मूला। साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos theta, cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta, and cos 2 theta to cos square theta minus 1. Now another formula we have a plus b formula. Suppose sin a plus b, that is sin a cos b plus cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b. If it is sin a minus b, then we can write sin a cos b minus cos a sin b, sin a cos b minus cos a sin b. Number 2, cos a plus b, cos a plus b we can write cos a cos b minus sin a sin b. If it is minus, then you can write here plus. नोट करिए फटाफट से, नोट कर लो सारे फॉर्मूलों को, जल्दी जल्दी नोट करिए। नाउ नेक्स्ट, कर लिया? नंबर 3, cos c plus cos d. You can write 2 cos c plus d by 2 into cos d minus c or c minus d by 2. Next, number 4, cos c minus cos d. You can write 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. d minus c ही लगाना आपको हमेशा, जिससे कि कोई गलती के चांसेस नहीं बने। आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी अब इन्हीं से रिलेटेड हम फॉर्मूले और भी तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें कि सीधा सीधा हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमें मान लीजिए कि साइन ए प्लस बी बनाना है, साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन और कॉस आ जाएगा उसके अंदर। अभी मान लीजिए हम साइन ए प्लस बी या साइन सी प्लस डी बनाना चाहते हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी बनाना चाहते हो आप लोग, तो आप क्या करें, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी बनाना चाहते हो तो भी इसी तरह से आ जाएगा, बिल्कुल सेम कंडीशन में आपको लेना है। यदि हम साइन सी प्लस डी बनाना चाहते हैं तो भी वैसे ही आ जाएगा, सी माइनस डी बनाना चाहते हैं तो कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में चला जाएगा। सीधा सीधा सा फंडामेंटल है। इफ वी वांट टू नो साइन सी माइनस साइन डी, तो उस कंडीशन में 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें मेन ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स के अंदर ऊपर वाले 2 फार्मूलों की। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सारा काम हम इन्हीं 2 फार्मूलों से कर लेते हैं, कहीं हमें दिक्कत की बात महसूस नहीं होती। बाद बाकी जिन बच्चों पे मैथ है वो तो करेंगे, तो पूरा नोट करिए बच्चों, आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। नोट कर लिया? ओके, हटा दें। ठीक, अब ये देखिए कि
ये तो हमारा पूरा अरेंज कर रहे हैं हम। हमारे फिजिक्स में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी हमें ज़रूरत है वो चीज़ देखते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या ज़रूरत पड़ने वाली है, वो चीज़ हमें अच्छी तरह से यहाँ पर देखनी पड़ेगी। सबसे वैल्यू तो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले साइन थीटा की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आती है, 0। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी 0। कॉस थीटा की भी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 0। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा हो कॉस थीटा हो, इनकी एवरेज वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, क्योंकि एवरेज में ये दोनों ही चीज़ चलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इनका जो ग्राफ है यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। अब इसी तरह से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, और यही एवरेज वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर थीटा की, इज इक्वल टू आता है 1/2। तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी 12th क्लास के अंदर। बहुत अच्छी तरह से आप लोग अभी से इसको याद करके रखना, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये हटा दें। अप्रोक्सीमेट वैल्यू राइट डाउन, सॉरी, साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा, सिमिलरली टेन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा, सॉरी, और कॉस थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1। कॉस थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जिनकी पता होना चाहिए कि टेन थीटा ऑलमोस्ट थीटा के बराबर हो जाए, कब होगा, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो तो उस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू हम थीटा के इक्वल ही लिख सकते हैं, क्योंकि जो चेन बनती है इनकी थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5, तो इस तरह से बनती है साइन थीटा की। और कॉस थीटा की जो चेन होती है 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4, इस तरह से बनेगी। तो आप सीधे सीधे से याद भी रख सकते हैं कि इस तरह से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। फटाफट से नोट कर लीजिए 1 सेकंड के अंदर। कर लिया सभी ने? चेन लिखाऊं इनकी? चेन लिखाने का कोई सेंस तो है नहीं, फिर भी लिख लीजिए आप चाहो तो। कॉस थीटा होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से साइन की आ जाएगी, साइन की थीटा माइनस थीटा क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 आएगी। तो ये बनती चली जाएंगी, इनकी हमें ज़रूरत है नहीं। हमें तो ज़रूरत केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमें पता होना चाहिए, इसके अलावा हमें कोई भी ज़रूरत है नहीं। अब देखिए कुछ फॉर्मूले और चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन माइनस थीटा, यदि साइन के अंदर नेगेटिव एंगल हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस साइन थीटा में। और कॉस माइनस थीटा के बनो तो खाली कॉस थीटा ही बनेगा प्लस का। तो ये हमें याद होना जरूरी। टेन का उसी हिसाब से आ जाएगा, टेन माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा ही आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, हटा दिया जाए। अब इसके बाद में कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में पाई 22/7, वैल्यू ऑफ ई 2.7123, 2.7123, ये हमें पता होना चाहिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा 12th क्लास के अंदर मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, 11th में भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वो अब करते हैं हम। चलिए तो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। वही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम आते हैं, सपोज करिए कि वी हैव ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे लिखा हो, और ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ओहो माय गॉड, गिर गया। चलिए कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, मेरा मोबाइल गिर गया। अब ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के बनो,
या a sin थीटा प्लस b cos थीटा गिवन हो। तो इस तरह के इक्वेशन को मैथमेटिक्स के अंदर हमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंज करना है। यानी कि भाई या तो साइन a प्लस बी की फॉर्म में बनाइए, यानी कि साइन थीटा बनाना है, a प्लस बी बना लीजिए इस तरह से, या कॉस a प्लस बी बनाइए, यानी कि खाली साइन ही साइन में आए, या फिर कॉस ही कॉस में, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में बनानी है। अभी ये है नहीं, तो इसमें क्या करते हैं बनाने का तरीका देखिए। a इज इक्वल टू आर कॉस फाइव लेट करेंगे अपन नंबर 1, एंड सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ दिस v इज इक्वल टू आर साइन फाइव नंबर 2। ये यदि आपको साइन में चेंज करना है तो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला होता है हमारा। और यदि कॉस ही कॉस में बदलना चाहते हैं तो इसको क्या हम ले लेंगे साइन, और इसको कॉस। तो देखते हैं जरा, वैल्यू पुट करिए, देन वी कैन राइट आर कॉस फाइव साइन थीटा प्लस आर साइन फाइव, दिस इज कॉस थीटा। आ गया, आर कॉमन ले लीजिए, इसको रीअरेंज कर लो, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको सिखाया था अभी अभी, ध्यान तो होगा ही सारे बच्चों को। तो हम इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा साइन थीटा प्लस फाइव, ये पूरा चेंज हो गया। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 3। तो हमने चेंज कर लिया, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला आ गया निकल कर के वो कितना बन गया, आंसर बन गया, हमने चेंज कर लिया आर साइन थीटा प्लस फाइव। बट हमें यहाँ पर आर और फाइव लेट किया था हमने, उसकी वैल्यूज और फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 एंड प्लस 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे आप। अब आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, देन यू कैन राइट साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 1, so we can write r square equal to a square plus b square और r is equal to under root of a square plus b square. This is the value of r. ऐसे वैल्यू हम r की फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें करंट फाइंड आउट करने में या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में, अभी आपको एक सम करके बताएंगे। अब हमें ये फाइव एंगल फाइंड आउट करना है, तो फाइव को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सेकंड डिवाइड बाई 1, सेकंड को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आर साइन 5 अपॉन आर कॉस 5 इज इक्वल टू बी अपॉन ए, आर से आर मार दीजिए, देन tan 5 इज इक्वल टू बी अपॉन ए और 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब क्वेश्चन करके बताते हैं। क्वेश्चन में मान लीजिए कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट की पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि करंट की जो इक्वेशन होती है वो या तो साइन ही साइन में होनी चाहिए या कॉस ही कॉस में होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होती। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो पहले, फिर कन्वर्ट करेंगे अपन। फटाफट से नोट करिए जब तक मैं अपना मोबाइल उठा लेता हूँ। मोबाइल मेरा गिर गया। चलिए, ज़्यादा नहीं टूटा है, थोड़ा सा ही टूटा है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम बताते हैं आपको।
आई इज इक्वल टू सपोज करिए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, वी वांट टू चेंज, तो लेट 3 इक्वल टू r cos फाइव एंड 4 इक्वल टू r sin फाइव। r की जगह यहाँ पर क्या लेट करेंगे, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट। हर जगह r थोड़ी मानेंगे अपन, तो नंबर 1 और नंबर 2। अब जैसे आपको समझाया था उसी हिसाब से वैल्यू को चेंज कर दीजिए। तो यू कैन राइट I0 cos फाइव sin थीटा प्लस I0 sin फाइव cos थीटा, और वी कैन राइट I इक्वल टू I0 कॉमन ले लीजिए sin थीटा cos फाइव प्लस cos थीटा sin फाइव, और वी कैन राइट I इक्वल टू I0, दिस इज योर sin A cos B प्लस cos A sin B, then we can write sin A plus B theta plus phi. This is our result. Here I0 is the peak value of current. This is called peak value of current. Then how can we find out this value? आपको बताया था I0 फाइंड आउट करनी है हमें, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर कर दीजिए। फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये 25 आ जाएंगे इज इक्वल टू I0 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और I0 स्क्वायर इक्वल टू 25, देन I0 इक्वल टू 5 एम्पियर। इस तरह से हमारी करंट आ जाएगी। नोट कर लीजिए पूरा आप लोग। नोट कर लिया बेटा सभी बच्चों ने? तो अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखिए। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के तहत हमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 11th क्लास में भी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, 12th क्लास के अंदर हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करके चलना बच्चों। दूसरी बात, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएं आपको, जैसे जैसे आपको बताते जा रहे हैं उस हिसाब से आप उसको नोट करते जाइए, और अच्छी तरह से नीट चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो आप आसानी से उसको फाइट कर जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात आपको आएगी नहीं। तो ये ओवरऑल सारा ट्रिग्नोमेट्री का आपको मैंने बता दिया है। जैसे जैसे फिजिक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से। अभी नेक्स्ट जो हम पार्ट बनाएंगे उसके अंदर हमारे 3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। इसके अंदर डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होगा, और ग्राफिक्स क्या होगा। ग्राफिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ेंगे पार्टिकल डायनामिक्स के अंदर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ में हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो ग्राफ के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफ आपको इतनी अच्छी तरह से बता देंगे कि आपको जीवन भर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।